الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بٹی، اور ہم کلاس فرسٹ ایئر میں سے علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب بزبانان اسلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے ہم نے پچھلی کلاس میں پہلے 3 اشعار پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چوتھے شعر سے اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور چوتھا شعر یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بے آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سما منظر، الفقر فخری عاجزی میرا فخر ہے، فقیری میرا فخر ہے، شان امارت امیری کی شان، بے آب و رنگ چمک دمک، خال و خط چہرہ مہرہ، چہ حاجت کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں، روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے حکمرانی میں انتہائی کمال زمانہ پایا، لیکن اس عظمت کے باوجود عاجزی ان کا فخر رہا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح خوبصورت چہرے کو ظاہری بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح عاجز حکمران کو، عاجزی کرنے والے حکمران کو اپنی حکمرانی کے اظہار کے لیے کسی دھن دولت کے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاعر مشرق نباز قوم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے نام اپنا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کو وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو حقیقی تھی، اس میں بناوٹ کا ذرہ برابر بھی دخل نہ تھا۔ تمہارے آباء و اجداد کا نام سن کر غیر مسلم قوتیں کانپ جاتی تھیں۔ اس ساری شان و شوکت ہونے کے باوجود فقر مسلمانوں کی شان رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی حکومت کا غرور اور تکبر نہیں کیا، اس پر گھمنڈ نہیں کیا، کبھی اپنے اختیارات کو ذاتی نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اللہ کی دین اور اس کی عطا سمجھا ہے۔ انہیں فقر کی یہ دولت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میسر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فقر کی اہمیت کے لیے ارشاد فرمایا: الفقر فخری والفقر منی، مجھ سے فقر مجھ سے ہے اور مجھے فقر پر بھروسہ ہے، مجھے فقر پر جو ہے وہ فخر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث بطور تلمیح کے استعمال کی گئی۔ تاریخ اسلام ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود گھر میں جو ہوتا وہی کھا لیتے، جو پینے کو ملتا وہی نوش فرما لیتے، جیسا بستر میسر آتا اسی پر آرام فرما لیتے۔ جنگ خندق میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اکثر اوقات نرم بستروں کی بجائے پتھر کو سرہانہ بنا کر سویا کرتے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر انتہا کو پہنچ جاتا، آپ اکثر سحری اور افطاری پانی سے فرماتے۔ ماہر القادری نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اختیاری فقر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ دوسرے مصرع میں ایک معروف شاعر حافظ شیرازی جو فارسی زبان کے بڑے قادر الکلام شاعر تھے، ان کا مصرع ذکر کیا ہے۔ اقبال نے یہ مصرع بطور تضمین کے استعمال کیا ہے۔ حافظ شیرازی کا کہنا یہ ہے کہ اگر چہرہ خوبصورت ہو تو اسے بنانے سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اقبال اس مصرع کی بدولت ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے حقیقی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، انہیں بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات اظہر من الشمس
लगती है कि फटे कपड़ों में लिपटे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर दूसरे मुल्क का सफीर हैरान और शुश्तर रह जाता था। फतेह बैतुल मुक़द्दस के मौका पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऊँट की नकेल थाम में देखकर, पैबंद लगे कपड़े देखकर ईसाई राहिब चिल्ला उठे थे कि खुदा की कसम, हम इस कदर सख्त कोश कौम का मुकाबला नहीं कर सकते जिसके हाकिम खुद को गुलामों से भी अदना न समझते हो। इस शेर के जरिए इकबाल हमें इस हकीकत को समझा देना चाहते हैं कि जिस तरह खुदा की अता करता हुस्न व खूबसूरती को सजाने की कतई ज़रूरत नहीं रहती, इसी तरह फ़क्र की दौलत से माला माल लोग भी गुरूर, तकब्बुर और दिखावे से दूर रहते हैं। गलबन इंशाअल्लाह खान इंशा ने कहा था कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो खुशनुमा लगता है कैसा चांद बिन गहने, कि देखो खुशनुमा लगता है कैसा चांद बिन गहने। पांचवा शेर है और आज के सबक का दूसरा शेर है। इकबाल कहते हैं गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गदाई किसी के आगे हाथ फैलाना, गुयूर गैरतमंद, मुनिम नेमतों वाले, अमीर लोग, यारा हौसला हिम्मत। शेर का तर्जमा ये है कि अपने शान दार दौरे हुकूमत में गरीब और मजबूर होकर भी दौलत से गैरत से इस कदर मामूर थे वो लोग, यानी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। वहां अमीर लोग इस बात से डरते थे कि अगर उन्होंने गरीबों की कुछ मदद करने को कहा तो कहीं वो उन्हें अपनी गैरत के बायस ठुकरा न दे। नब्बाज कौम हकीमुल उम्मत, शायर मशरक उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम देते हुए कहते हैं हमारे अबाओ अजदाद निहायत गैरतमंद थे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, भूखा मर जाने को फला जानते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही अपना मददगार तलब करते थे और उसी से मदद तलब करते थे और उसी को मददगार तसव्वुर करते थे। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त को खामोशी से गुजार लेते। गैरत मुसलमानों का जेवर थी, दीनी हमीयत और गैरत के सब कुछ कुर्बान कर देते थे। इसी करिश्मा की तरफ इशारा करते हुए कलंदर लाहौरी एक और मुकाम पर कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। दीन इस्लाम में गदाई को हराम फिल करार दिया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मांगने वालों पर खुदा की लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिसने अल्लाह का वास्ता देकर हाथ फैलाया उस पर लानत हो। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदागरी की इस कदर मुजम्मत फरमाई कि गदागरी का पेशा काबिल नफरत तस्वुर किया जाने लगा। लोग न सिर्फ गदागरी को बुरा जानते थे बल्कि गदागर को भी जिल्लत भरी नजरों से देखते थे। गैरत मुसलमानों में इस कदर रासिख हो चुकी थी, लेकिन जब से मुसलमानों ने गदाई को दोबारा अपना लिया और अपना दामन फक्र की दौलत से खाली कर लिया, इसके बाद मुसलमान मुसलसल जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी बात को इकबाल एक और मुकाम पर इशार फरमाते हैं कि ये फक्र मर्द मुसलमान ने खो दिया जब से, ये फक्र मर्द मुसलमान ने खो दिया जब से, रही न दौलत मुसलमानी ओ सुलेमानी, रही न दौलत मुसलमानी ओ सुलेमानी। दूसरे मिसरा में इकबाल कुरून ऊला के दौलतमंद और सखी मुसलमानों का तज़किरा करते हुए उस दौर के मुसलमान किसी गरीब और मजबूर को जब खैरात देते थे तो या किसी वक्त की मदद करते वक्त अल्लाह का खौफ रखते थे, कहीं वो गरीब मुसलमान गैरत के बायस इस चीज़ का इनकार ना कर दे और उसे मुसलमानों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि दौलत के बायस किसी मुसलमान की हौसला शिकनी की है। जैसा कि हिजरत मदीना के बाद जब अंसार मदीना ने मुहाजिरीन मक्का के लिए अपने माल और दौलत पेश फरमाए तो उन्होंने ये कहकर उनका माल वापस कर दिया कि आप अपना माल अपने पास रखें, हमें बाजार का रास्ता बता दें, हम मेहनत करके अपना पेट खुद पाल सकते हैं। इसलिए इकबाल कहता है निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है,
खिराज की जो गदा हो वो कैसर क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। शायर असल में आज के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक मुसलमान गैरत को बतौर कुव्वत इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया पर हुक्मरान रहे, लेकिन आज हमने मगरबी हुक्मरानों से कर्जे के नाम पर भीख लेना शुरू कर दी है, हम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, हमारा एहतराम दुनिया से उठ गया। हमारे हुक्मरान आज भिखारी बनकर अमेरिका और दीगर यूरोपीय कुव्वतों से मदद तलब करते हैं। वो मुसलमानों को खुश होकर कर्जे देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि कर्ज लेने वाला कभी अपने कर्ज खा के सामने नजरें नहीं उठा सकता। इसलिए आज मुसलमान ममालिक कर्जे लेकर एक ऐसी दलदल में फंस रहे हैं जिसमें से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। इसीलिए इकबाल हमें ये पैगाम देते हैं, ऐ मुसलमानों अपनी गैरत को जगाओ, जब गैरत बेदार होगी तो हमारा शानदार माजी एक मर्तबा फिर हमारा इस्तिकबाल करेगा, हमें अल्लाह एक मर्तबा फिर इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगा। इकबाल खुद कहते हैं, खुदा ने उसको दिया है शिकवे सुल्तानी, खुदा ने उसको दिया है शिकवे सुल्तानी, कि उसके फक्र में है हैदरियो कर्रारी, कि उसके फक्र में है हैदरियो कर्रारी। छठा शेर है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नज़ारा, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नज़ारा। नक्शा तस्वीर मंजर, तखय्युल सोच, फजू तर बुलंद तर, नज़ारा मंजर। तर्जमा यह है कि अगर मैं चाहूँ तो चश्मे तसव्वुर में उन तमाम अनदेखे अजीम मनाजिर को आपके सामने तस्वीर की सूरत में पेश कर सकता हूँ जो माजी में मुसलमानों ने अंजाम दिए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो मनाजिर तेरी सोच से निहायत बुलंद है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुस्लिमा के नाम अपना पैगाम देते हैं। वो अपनी कुव्वत बसीरत और कुव्वत मुशाहिदा की बदौलत दावा करते दिखाई देते हैं कि ऐ मुसलमान, अगर मैं चाहूँ तो मैं तेरे सामने वो सब नज़ारे पेश कर सकता हूँ जो अल्लाह ने अपने ख़ास फजल से मुझे दिखाए हैं। मैंने ऐसी ऐसी बातों का मुशाहिदा किया है कि अगर तुम वो बातें जान लो या सुन लो तो तुम बरते हैरत में डूब जाओगे। अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत तहरीर से नवाजा है कि अगर मैं उन तमाम नज़ारों को अल्फाज का रूप पहना दूं तो आपके सामने ऐसा करने की मेरे अंदर सलाहियत और कुदरत मौजूद है। मैं अल्फाज के ज़रिए तुम्हें अपने तमाम नज़ारे दिखा सकता हूँ जो मैंने चश्मे बसीरत से देखे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है ऐसे मनाजिर को देखने के लिए चश्मे बीना दरकार होती है जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन मनाजिर का मुशाहिदा करने के लिए चश्मे दिल का वाह होना अजहब ज़रूरी है। इकबाल एक और मुकाम पर कहते हैं कि जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदा दिल वाह करे कोई। दूसरे मिसरे में कहते हैं, मुसलमान नौजवान, जो मंजर तुझे मैं दिखाना चाहता हूँ वो तेरे तखय्युल से बुलंद है, तेरी सोच से बालातर है, इसलिए तू इन नज़ारों को नहीं देख सकता। ए नौजवान, जो नज़ारे मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ उनको देखकर तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी। तुझे अंदाज़ा नहीं है कि इन नज़ारों के अंदर जो तजल्लियात पोशीदा हैं वो तुम्हें राख भी कर सकती हैं। इसलिए तो इकबाल मर्दाने हुर की बिनाई का तलबगार है। इकबाल कहता है, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना, कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। हकीकत में शायर मशरिक मुस्लिम नौजवान के अंदर कुव्वत शौक पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फितरत का कानून है कि अगर किसी के अंदर किसी चीज़ को पाने का शौक पैदा कर दिया जाए तो वो इस चीज़ को पाने के लिए कोशां हो जाता है। इकबाल भी इसी गुर को इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं कि जो मनाजिर मैंने देखी मुसलमान उसकी जुस्तजू शुरू कर दें। यही वजह है कि इकबाल तमाम मुसलमानों के लिए गोया हैं। वो कहते हैं कि महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे।
جی بیٹے، یہ 3 شعر آج کے ہمارے مکمل ہو گئے. کسی بچے کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.